Hello, welcome back 10 classes students. Today, the same chapter is running, but the second part of two stories about flying is going to be started. Students, it's very interesting chapter. There is a mystery, there is a history of mystery, there is great adventure. What writer means Mr. Frederick Ferd. Okay. Do you know about mysteries? What is the definition of mystery? Mystery means when you don't know anything after completing the theme or chapter or anything else. It means at the end you don't know the mystery of the chapter. This is called mystery, rahasya. Okay, the hidden theories. The chapter is related with the mysterious facts, mysterious concepts related with this chapter. The chapter name is very interesting, the black aeroplane. The black aeroplane, in short, I'm telling you, the writer was flying with great happiness because he wanted to spend his time, his holiday with his family. He wanted to have fresh breakfast. Okay, that's why he was very excited to meet with his family, and he was flying old Dakota aeroplane. When he was flying old Dakota aeroplane over France back to England, he thought about only his family. Okay, the meeting of his family. But suddenly the weather changed. There was a big cloud and he was caught in big cloud. At the same time, okay, all the instruments got failed. And writer thought, what will happen, because no any instrument is running by the help by which I can call control room. But in the beginning, he just started to call control room. And after failing all the instruments, he got an idea. Okay, what type of idea? When he saw behind, there was a black aeroplane. Okay, there was a black aeroplane, and the pilot of that black aeroplane wanted to guide him, wanted to guide the writer, okay, in which direction he must go on. And the writer got those guidelines by that pilot. This is the mystery. Okay, and by the time he landed safely, and after landing, when writer asked this question, okay, who was that pilot? Okay, who was that person who helped me a lot for landing here safely? Okay, the woman of control room said, no, I am very confident there was no other aeroplane which was flying instead of your aeroplane. The writer got shocked, got surprised, and this story tells this type of mystery. Okay, shall we start? Are you ready? Good. Now, first para, the beginning lines of this chapter, listen carefully. The black aeroplane. The moon was coming up in the east behind me and the stars were shining in the clear sky. Means जब राइटर ने अपनी ये जर्नी शुरू की, कौन सी जर्नी? कोई ट्रेन जर्नी नहीं थी, ये बस जर्नी नहीं थी, ये फ्लाइंग जर्नी थी, ठीक है। जब उसने अपनी उड़ान भरनी शुरू की, देयर वॉज नो बिग क्लाउड। ओके, कोई कैसे बादल जो थे वो इतने फ्रेश थे, आसमान जो था एकदम साफ था। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, जो चंद्रमा का जो डायरेक्शन था वो धीरे धीरे किस ओर बढ़ रहा था, ईस्ट की तरफ। तारे इतने चमक रहे थे, आसमान इतना खूबसूरत लग रहा था। द सीन वॉज वेरी ब्यूटिफुल, ओके, एंड एक्साइटिंग फॉर मीटिंग विद हिज फैमिली. Behind me, the stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. Okay, what? I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. मैं इसलिए भी खुश था. क्यों खुश था? क्योंकि वो अकेले थे, कोई और आसपास नहीं था जो फ्लाइंग कर रहे थे, कोई और दूसरा पायलट नहीं था उस वक्त. और सबसे बड़ी खुशी की बात उनके लिए क्या थी? What was a great happiness for the writer? क्योंकि वो अपनी फैमिली के पास जा रहे थे. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. मैं अपने old Dakota aeroplane को उड़ा रहा था. क्या मेरे नीचे जो था वो क्या था? पूरा पेरिस बहुत खूबसूरत लग रहा था. ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. I
my holiday and looking forward to being with my family. मैं सपनों में खोया हुआ था because the writer was lost in his ideas, okay, for dreaming. ड्रीमिंग, कौन सा ड्रीम, किन सपनों में खोए हुए थे, कौन सी खुशी थी, आपको पता है. हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग. जब मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा, उस घड़ी में सुबह सुबह कितने बजे हुए थे, 1:30 बजे हुए थे. क्योंकि ये बिगनिंग थी, बिगनिंग में एक्साइटमेंट भी था, वो खुशी भी थी, लेकिन राइटर को ये नहीं पता था कि उनकी जर्नी थोड़ी सी फेल होते होते सक्सेसफुल हो जाएगी एक ऐसी मिस्ट्री के साथ जो उन्हें अनएक्सपेक्टेड थी. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम. मुझे यहाँ पर अब पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करना चाहिए. आई थॉट, मुझे लगा, मैंने सोचा. एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. मैंने खूबसूरत पेरिस देखा अपनी आँखों से, और जब मैंने नीचे देखा एरोप्लेन से तो वो पूरा शहर जो है वो चमक रहा था लाइट से. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, और मैंने रेडियो शुरू किया और कहा, ठीक है, क्या, पेरिस कंट्रोल Dakota DS, okay, 088 here, can you hear me, okay, I am on my way to England, over. मैं अपने रास्ते पर हूँ इंग्लैंड की तरफ जो जा रहा है. ये कंट्रोल रूम की तरफ उनकी फर्स्ट कॉल थी अपनी फ्लाइंग में. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और रेडियो से तुरंत मुझे आवाज़ आई, ठीक है. DS 088, I can hear you. I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. वहाँ से आवाज़ आई कि किस डायरेक्शन की ओर राइटर को टर्न करना चाहिए. तो किस डायरेक्शन की ओर टर्न करना चाहिए, किस डिग्री की ओर. You ought to turn 12 degrees की ओर वेस्ट. लेकिन डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए, वेस्ट. DS 088 ओवर. अब ये कॉल जो है यहीं पे ख़त्म हुई, और कॉल में ये बता दिया गया, ये इंस्ट्रक्शन दे दिया गया कि किस ओर राइटर को मुड़ना है, और उसके लिए वो सेफ जोन है. आई चेक द मैप एंड द कंपास. मैंने क्या चेक किया, जो उनके इंस्ट्रूमेंट से, मैंने मैप बहुत ध्यान से देखा डायरेक्शंस देखने के लिए, कंपास को चेक किया. स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. और फ्यूल टैंक, अब फ्यूल टैंक फुल होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ आते आते फ्यूल टैंक बहुत नहीं था, मीन्स सफिशिएंट नहीं था उसमें फ्यूल, वो ज़्यादा नहीं था आगे बढ़ने के लिए. एंड टर्न द Dakota 12 degrees west towards England. और मैंने उसी डिग्री की ओर उसे मोड़ा. आई बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. आई थॉट, मैंने सोचा, वो बहुत खुश थे राइटर, उसने सोचा कि बहुत जल्दी ही मैं बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट करने वाला हूँ अपनी फैमिली के साथ. नेक्स्ट, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. सब कुछ बहुत ईजी स्मूथ चल रहा था. एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑन स्मूथली. मतलब कुछ भी ऐसा ऑब्स्टेकल नहीं था जो राइटर फेस कर सकें या वो एक्सपेक्ट कर सकें आगे आने वाला फोर्थकमिंग ऑब्स्टेकल क्या होगा, उनको नहीं था ये अंदाज़ा. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स. यानी कि 150 किलोमीटर दूरी मैंने तय कर ली थी. स्टॉर्म क्लाउड्स क्या था, व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स, मैंने बादल देखे, घने बादल, स्टॉर्मी क्लाउड्स देखे, यानी कि तूफान आने का अंदेशा हो सकता है. दे वर ह्यूज, बहुत बड़े थे वो क्लाउड्स, बहुत विशाल थे. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. और मेरे सामने वो बादल कुछ नॉर्मल क्लाउड्स की तरह नहीं लग रहे थे, वो बड़े बड़े पहाड़ों की तरह लग रहे थे मेरे सामने. And I knew I could not fly up and over them, and I didn't have enough fuel to fly around them to the north or south. और जब उन्होंने चेक किया राइटर ने, क्या अब ईंधन भी ख़त्म होने जा रहा है, फ्यूल भी मेरे पास सफिशिएंट नहीं है, और मेरे पास इतना टाइम फ्यूल के अकॉर्डिंगली नहीं है, मीन्स फ्यूल कम है और मुझे दूरी अच्छी तय करनी है, और क्लाउड्स के आसपास घूमने का मेरे पास फ्यूल नहीं है जितना होना चाहिए. टू द नॉर्थ और साउथ, किस डायरेक्शन की ओर जाने के लिए, ना ही नॉर्थ की ओर जाने के लिए, ना ही साउथ की ओर जाने के लिए. वो कंफ्यूज थे, परप्लेक्स्ड हो गए राइटर. आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस. अब मुझे लगता है कि मेरी जर्नी यहाँ फेल होने वाली है, तो मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए कि मैं पेरिस की ओर वापस ही चला जाऊँ. ओके, आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम. ओके, मैं सोच तो रहा था, ओके, बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारे आइडियाज़ राइटर के मन में आ रहे थे, ओके, विच वर रनिंग थ्रू, ठीक है, लेकिन
राइटर को एक डिसीजन लेना था। डिसीजन क्या था? सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसकी फ्लाइंग में सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या होना था उनके लिए कि उन्हें अपनी फैमिली से मिलना था। ओके, आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं बहुत टाइम से आई हैड बीन वेटिंग। ओके, किसका इंतज़ार कर रहा था? आई हैड बीन वेटिंग टू हैव माई ब्रेकफास्ट विद माई फैमिली। I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. Definitely, मेरे में confidence maintain है अभी तक, मैं ये risk लूँगा। I wanted to take this type of risk, मैं आगे बढ़ूँगा। Definitely मैं इस flight को successful बनाऊँगा। उसने ये final decision लिया, right? Inside the clouds. Next, first page, last paragraph. Inside the clouds, everything was suddenly black. Okay, बादलों के अंदर जैसे जैसे उनका एरोप्लेन जा रहा था, ओके, एरोप्लेन was going inside the clouds. क्या हुआ देखिए, everything was suddenly black, सब कुछ अचानक अंधकारमय हो गया। मीन्स चारों तरफ अंधकार था। It was impossible to see anything outside the aeroplane, और मेरे लिए बहुत ही असंभव था। It was very tough to see outside because there was blackness. हर तरफ, चारों तरफ जो है अंधेरा था, darkness थी। The old aeroplane jumped and twisted in the air, क्योंकि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो ऑब्वियस सी बात है कि एरोप्लेन का जो डायरेक्शन है वो ट्विस्ट होगा, वो स्ट्रेट ना जाकर इधर उधर घूम रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी राइट कभी लेफ्ट। ओके, ट्विस्ट हो रहा था एरोप्लेन, and it was a dangerous journey for him. I looked at the compass, मैंने कंपास की ओर देखा। I couldn't believe, और मेरी आंखों को ये विश्वास नहीं हुआ। क्या विश्वास नहीं हुआ? My eyes, the compass was turning round and round and round. It was dead, और कंपास तो गोल गोल घूम रहा था और मुझे लग रहा है कि ये भी फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। It would not work, उसने वर्क नहीं किया उस कंपास ने। The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio, और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी मेरे लिए बेकार हो गए, उन्होंने भी वर्क करना बंद कर दिया। And it was a complicated situation for the writer. At the same time, some more experiences he got, and in my next video you will get to all these experiences experienced by the writer.